بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 202 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ قلم کی آیت نمبر 44 سے لے کر 47 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ لہٰذا اے پیغمبر جو لوگ اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں، وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ جو اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں، فَذَرْنِي انہیں مجھ پر چھوڑ دو، سَنَسْتَدْرِجُهُمْ ہم انہیں اس طرح دھیرے دھیرے لے جائیں گے، من حیث لا یعلمون کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ اور میں انہیں ڈیل دے رہا ہوں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ یقین رکھو میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ کیا تم ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہو؟ فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں۔ ام عندهم الغیب فہم یکتبون یا ان کے پاس غیب کا علم ہے، ام عندهم الغیب یا ان کے پاس غیب کا علم ہے، فہم یکتبون جسے وہ لکھ رہے ہوں۔ عزیز طلبہ، یہ جو آیت ہے فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منکرین ہیں، جو مکذبین ہیں، ان کو وعید سنائی ہے، لیکن ایسا جو ہے وہ انداز اختیار فرمایا ہے کہ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور اسی میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی جو ہے وہ پوشیدہ ہے۔ مجھے اور ان لوگوں کو رہنے دیجئے، فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے مجھے اور ان لوگوں کو رہنے دیجئے جو اس کلام کو جھٹلاتے ہیں، وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيث جو اس کلام کو جھٹلاتے ہیں، یعنی عذاب آنے میں جو دیر لگ رہی ہے آپ اس سے رنجیدہ نہ ہوں۔ یعنی کہ ایک معنی تو وہ ہے جو پہلے میں نے کیا کہ مجھے چھوڑ دیجئے، یہ جو تکذیب کرنے والے ہیں ان کو مجھ پر چھوڑ دیجئے، ایک معنی تو یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ بھی مفسرین نے کیا ہے مجھے اور ان تکذیب کرنے والوں کو چھوڑ دیجئے جو جھٹلا رہے ہیں بہذا الحدیث اس کلام کو، اور آپ ان پر عذاب آنے سے جو دیر ہو رہی ہے اس سے رنجیدہ نہ ہو، غمگین نہ ہو، ہم انہیں بتدریج جو ہے وہ جہنم کی طرف لے جائیں گے، سنستدرجہم بتدریج لے جائیں گے، یہ ان کے لیے استدراج ہے، ان کے لیے مہلت ہے، من حیث لا یعلمون اس طور پر کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، یعنی انہیں خبر بھی نہیں ہوگی، انہیں مہلت دی جا رہی ہے، انہوں نے اس مہلت کو اپنے لیے جو ہے وہ ایک فائدے کی چیز سمجھ لیا ہے، اور دنیا کی نعمتوں میں، دنیا کی جو لذتیں ہیں ان میں جو ہے وہ پڑھ کر اپنے آپ کو جو ہے وہ کامیاب سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ صحیح راستے پر ہیں اور کامیابی کی طرف جا رہے ہیں، حالانکہ یہ سراسر ناکامی کا راستہ ہے، عذاب کی طرف انہیں لے جا رہا ہے۔ یہ ڈیل جو ہے یہ ایک تدبیر ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ میں انہیں ڈیل دے رہا ہوں، مہلت دے رہا ہوں، إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ یہ ڈیل جو دی جا رہی ہے ان کو کہ فوراً ان کے اوپر عذاب نازل نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو بتدریج جو ہے وہ موقع دے رہے ہیں، اور وہ معاصی کے اندر، گناہوں کے اندر مزید انہماک سے لگے ہوئے ہیں، منہمک ہو رہے ہیں، اور انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ اس راستے پر چل کر جہنم کی طرف جا رہے ہیں، تو لہٰذا یہ استدراج ہے، انہیں پتہ نہیں ہے، ہماری طرف سے یہ استدراج ہے، ہم نے جان بوجھ کے مہلت دے رکھی ہے تاکہ یہ مزید گناہوں میں پڑتے چلے جائیں، گناہوں میں جو ہے وہ ان گناہوں کی دلدل میں پھنستے چلے جائیں، اور آخر میں جا کر انہوں نے جہنم کے گڑھے میں ہی گرنا ہے، تو لہٰذا یہ ایک تدبیر ہے،
اور اللہ ताला की जो तदबीर है इन्न कैदी मतीन वो बड़ी ही सख्त है, मजबूत है। लिहाजा इनको जो मोहलत दी जा रही है उससे आप रंजीदा ना हो, आप दिल गिरफ्ता ना हो। ये मजीद जो है वो मासी में पढ़कर, गुनाहों में पढ़कर जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं और इन्हें पता भी नहीं चल रहा कि इन्हें जहन्नुम की तरफ ही ले जाया जा रहा है। आगे फरमाया अम तसअलुहुम अजरन फहुम मिन मग़रमिन मुस्क़लून, क्या आप इनसे कोई मुआवजा तलब करते हैं, यानी कोई इनसे उजरत तलब करते हैं जिसके तावान से वो दबे जाते हैं। यानी ये बतौर इस्तिफ़ाम इनकारी के अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया है। मतलब ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तबलीग करना है उनको, और इसी तरह ईमान की दावत देना है, अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाना है, अल्लाह ताला की इत्तिबा की तरफ बुलाना है, ये सब अल्लाह के रज़ा के लिए है। आप अल्लाह ताला ही से सवाब की उम्मीद रखते हैं, उनसे तो आप किसी तरह की उजरत या मुआवजे का मुतालबा नहीं करते। अगर उनसे कुछ तलब फरमाते होते तो उनको इसकी अदायगी मुश्किल पड़ जाती। फ़हुम मिन मग़रमिन मुस्क़लून, तो उन्हें इसकी अदायगी जो है वो मुश्किल पड़ जाती। जब आप उनसे कोई चीज़ तलब ही नहीं कर रहे तो उन्हें खुद इस बात की समझ होनी चाहिए, खुद समझ लेना चाहिए कि दावत के काम में इतनी मेहनत कोशिश क्यों आप कर रहे हैं। यानी जब आपको ना मुआवजा मिल रहा है ना ये आप जो है वो उनसे कोई उजरत तलब करते हैं, तो मुआवजा तलब करते हैं, तो उन्हें खुद समझ लेना चाहिए कि जो है वो इतनी मेहनत फिर क्यों कर रहे हैं जब कोई मुआवजा भी नहीं मिल रहा, कोई किसी किस्म का जो है वो कोई जो है वो उजरत भी इस पर आप नहीं लेते। आप इसके बावजूद अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ उनको बुला रहे हैं, आप इसके बावजूद तबलीग कर रहे हैं और अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी की दावत दे रहे हैं। तो ये उन्हें खुद समझ लेना चाहिए कि जब दावत के काम में आप इतनी मेहनत और कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दुनियादारी के नशे में पागल हुए हैं और दुनियादारी के नशे में समझदारी जो है वो उनके पास से नहीं गुजरी, और समझदारी को वो अपने पास आने भी नहीं देते और एराज करते रहते हैं, एराज मुसलसल किए जा रहे हैं। अम इंदहुमुल गैबु फहुम यक्तुबून, फिर फरमाया कि क्या उनके पास गैब का इल्म है जिसे वो लिख लिया करते हैं। ये भी इस्तिफाम इनकारी है। अम इंदहुमुल गैबु, ये भी इस्तिफाम इनकारी है। इस्तिफाम इनकारी के तरीके पर अल्लाह तबारक व तआला ने इसको जिक्र किया है। मतलब ये है कि उनको किसी तरीके से खुद अल्लाह ताला के अहकामात का पता चल जाता है, खुद अहकाम खुदाबंदी उनको मालूम हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो साहिब वही हैं यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका उनके इत्तिबा से बेनियाज हैं, उनके इत्तिबा से एराज कर रहे हैं, मुंह मोड़े हुए हैं। मतलब ये हुआ कि उनके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसके ज़रिए अल्लाह ताला के अहकामात बराह रास्त उनको पता चल जाएं, वो खुद ही मालूम कर लिया करें कि अल्लाह का क्या हुक्म है। हालांकि अपने खालिक के अहकाम जानना उनके लिए ज़रूरी है। जब और कोई ज़रिए अल्लाह ताला के अहकामात मालूम करने का नहीं है और आपकी नबूवत का इनकार करने की भी कोई वजह नहीं है, तो इसका इनकार करना उनकी नासमझी है, उनकी बेवकूफ़ी है, उनकी हमाकत है, जिस पर उनके पास कोई जो है वो दलील भी नहीं है। कोई गैब से भी उनके पास ऐसी कोई जो है वो इल्म नहीं है जिससे उनको अल्लाह ताला के अहकामात मिल जाते हों। अल्लाह ताला के अहकामात मिलने का एक ही ज़रिया है कि वही के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन अहकामात की उनको तबलीग करते हैं, उन अहकामात की इत्तिबा का कहते हैं और अल्लाह ताला की वहदानियत पर, अल्लाह ताला की जो ज़ात है, अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं उन पर ईमान लाने की उनको दावत देते हैं। तो सिर्फ एक ही ज़रिया है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है, और वो भी जब तबलीग करते हैं, जब उनको अल्लाह ताला के दीन की दावत देते हैं, तो इस दावत के बदले में कोई उजरत तलब नहीं करते, कोई मुआवजा तलब नहीं करते। तो फिर उन्हें खुद ही इस बात का एहसास होना चाहिए, खुद ही समझदारी से काम लेना चाहिए कि एक शख्स जो नबूवत का दावा कर रहा है और अल्लाह ताला के अहकामात हमें सुना रहा है, इस पर वो किसी किस्म का मुआवजा भी तलब नहीं कर रहा, तो फिर वो इतनी मेहनत और कोशिश क्यों कर रहा है, उसकी क्या वजह है।
تو इसके बावजूद, इतनी सारे चीज़ों के बावजूद वो इनकार करते हैं और मुसलसल एराज़ किए जा रहे हैं। तो उनका ये एराज़ करना, उनका इनकार करना, ये उनकी नासमझी है, उनकी बेवकूफ़ी है और उनकी हमाकत है, सिवाय हमाकत के और कुछ भी नहीं है। अब इन आयात की तफसीर जलालैन मुलाहिज़ा हो। फज़रनी दानी, ज़रनी का माना बयान कर दिया मुसन्निफ ने, मुझे छोड़ दीजिए। वमन युकज़्ज़िबु बिहाज़ल हदीसी, और उनको भी जो जुटलाते हैं इस कलाम को, अल कुरआनी, हदीस से मुराद कुरआन है, यानी मुझे और उनको छोड़ दीजिए जो तकज़ीब करते हैं, जो जुटलाते हैं इस कलाम को, यानी कि कुरान करीम को। सनस्तदरिजुहुम, हम उन्हें जो है वो मोहलत देते हैं, बतदरीज जो है वो उनको पकड़ेंगे या उनको बतदरीज खींच रहे हैं। नअख़ुज़ुहुम क़लीलन क़लीला, ये इस्तदराज का माना मुसन्निफ ज़िक्र फरमा रहे हैं कि हम उन्हें आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे, मिन हैसु ला यअलमून, इस तौर पर कि उन्हें मालूम भी नहीं होगा। यानी हम उन्हें मोहलत दे रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम उन्हें जो है वो अज़ाब की तरफ खींच रहे हैं, जहन्नुम की तरफ खींचेंगे, तो कि उन्हें पता भी नहीं चलेगा। व उमली लहुम उमहिलुहुम, और मैं उनको मोहलत दे रहा हूँ। उमली का माना है उमहिलुहुम, यानी कि मैं उनको मोहलत दे रहा हूँ, यानी उनको ढील दे रहा हूँ या ढील दूंगा। इन कैदी मतीन, कि बेशक मेरी तदबीर जो है वो बड़ी मजबूत है। शदीदुन ला युताक़ु, यानी वो तदबीर जो है उसके बारे में मुसन्निफ फरमा रहे हैं कि मतीन का माना ये है, जो तदबीर मजबूत है उसका माना ये है कि ऐसी सख्त है कि जो है वो कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। ला युताक़ु, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता, मुकाबला करने की ताकत नहीं रखता। बल, जो है ये बल के माना में है। तसअलुहुम, आप उनसे सवाल करते हैं, अला तबलीग रिसालती, या आप उनसे सवाल करते हैं या मुतालबा करते हैं रिसालत की तबलीग पर, अजरन, अजर का, मुआवजे का जो है वो मुतालबा करते हैं, उजरत का मुतालबा करते हैं। फहुम में मगरमिन मुस्करून, जिसके बोझ से वो दबे जा रहे हैं। मिम्मा यूतून कहू, यानी उसके बोझ से जो वो आपको देते हैं दबे जा रहे हैं। यानी ये जो आपको दे रहे हैं तबलीग के बदले में उजरत, जिसका आप मुतालबा करें, जिसकी वजह से वो दबे जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। यानी कि ये इस्तिफाम इनकारी है कि आप उनसे कोई उजरत का मुतालबा भी नहीं करते। फला युमिनून लिज़ालिका, तो इस वजह से वो लोग ईमान नहीं लाते। यानी जब उजरत का मुतालबा आपकी तरफ से होगा तो फिर ईमान न लाएं, तो फिर अलग बात है कि आप जो है वो रिसालत की तबलीग पर उनसे उजरत तलब करते हैं जो कि उन पर बोझ है, इस वजह से वो ईमान नहीं लाते। हालांकि ऐसा नहीं है, आप तो उजरत तलब नहीं करते। अम इंदहुमुल गैब, या उनके पास कोई गैब है, इल्म गैब है, गैब का इल्म है। अल लौहुल महफूज़ुल लज़ी फ़ीहिल गैब, मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं लोहे महफूज है, यानी कि गैब से मुराद लोहे महफूज है। अल्लज़ी फ़ीहिल गैब, जिसमें गैब की बातें हैं, यानी बराह रास्त उनके पास अहकाम खुदाबंदी भी नहीं आते, ये इसका मतलब है। फ़हुम यक्तुबून, जिसे वो लिख लेते हैं, यानी कि ये बराह रास्त इन पर अहकामात आते हैं जो ये कहते हैं, इसलिए लिख लेते हैं। यानी जो इनकी बातें हैं, इनके अहकामात अल्लाह ताला की तरफ से आए हों और इन्होंने उसको लिख लिया हो। मिनहुम मा यक़ूलून, तो लिहाजा उनके बारे में जो वो चाहता है, जो ये कहते हैं उनके बारे में उसको लिख लेते हों, ऐसा भी नहीं है कि इनके पास कोई गैब का इल्म हो। यानी कि ना तो आप इनसे जो है वो उजरत का मुतालबा करते हैं और ना ही जो है इनके पास कोई बराह रास्त अहकाम खुदाबंदी के आने का जरिया है जिसको ये लिख लेते हों उसमें से जो ये कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनकी बेवकूफ़ी है जिसकी वजह से ये ईमान नहीं लाते।
ہم اسی وجہ سے ان کو جو ہے وہ ڈیل دے رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ہم ان کو پکڑیں گے اور جہنم کے عذاب کی طرف ان کو کھینچ لیں گے، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون کی تفسیر ذکر کریں۔ نمبر 2، ام عندہم الغیب سے کیا مراد ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔